I extend greetings to all of you. सीआरपीएफ के निमित्त मैं आप सभी को का अभिवादन करता हूं। ये जो घटना कल हुई वो सभी सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास का एक बहुत ही सफल उदाहरण है और जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके दौरान रियल टाइम में सीआरपीएफ ने अपना रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से हम आतंकी तत्वों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे। यह भी बहुत प्रशंसनीय है और इसी के चलते मैं आज इन बहादुर जवानों अधिकारियों को बधाई देने आया हूं, शाबाशी देने आया हूं, उसकी हौसला अफजाई करने आया हूं और आपके निमित्त मैं देश और देश के सभी नागरिकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह आपका आंतरिक सुरक्षा बल मुस्तैदी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीम सीआरपीएफ ने जो कार्य किया वो आपके समक्ष है, आप उससे अवगत हैं, मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस निमित्त मैं उस हर बल की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जिसने कि तत्काल इस अभियान में अपनी पूरी शक्ति के साथ मदद की और इस पूरे अभियान को सफल बनाया। इसलिए सभी सुरक्षा बल भी जो इसमें शामिल रहे प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी अवगत हैं कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो सुरक्षा का परिदृश्य है, वो से अपने रिस्पॉन्सेस को कस्टमाइज करते रहना ये सीआरपीएफ की खासियत रही है और काफी हिम्मत से, दिलेरी से सीआरपीएफ के कर्मचारियों ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई की। ये सब प्रशंसा के पात्र हैं और आगे इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे, ये मेरा भी विश्वास है और मैं इस बल के मुखिया होने के नाते भी आप लोग को विश्वास दिलाता हूं और सभी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के हम एक सुरक्षित परिवेश, एक अच्छा वातावरण काम करने में सफल होंगे। यही मेरी दिली इच्छा भी है और यही मैं ध्येय रखते हुए हम सब इसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, ये कितनी बड़ी Look, what has been prevented is intangible. You can't assess immediately. But guess, the amount of armory and the destructive power they had, anything could have happened. So looking into that, it's a great achievement. Achievement is not that what has been prevented. Achievement is that there was somebody who was so alert, somebody who showed the courage, somebody who took all the forces together, and it was a combined operational synergy of all the security forces. Yes, CRPF boys were on the spot, the local police was on the spot, took the lead, and that is admirable because that time we did not know maybe that there was a larger, destructive power they were carrying. And thirdly, very, very important thing, those who could be caught alive, they have been caught alive, so that we can interrogate. The interrogation agencies can find further leads and we can reach to the roots. We can know many more facts which can be helpful. Overall, therefore, wherever necessary, the minimum use of force, the people were neutralized, and wherever they could catch them alive, they were caught alive, and that is the beauty of the whole operation. So as a professional, I will Sir, yesterday's incident shows that infiltration is taking place, but post abrogation of Article 370, we haven't seen a major terror attack in Kashmir. So, is there a change of strategy, or forces are having an upper hand, sir? See, as I said, the conflict situation, what we call the low intensity conflict or the scenario, security scenario is dynamic, and every force is customizing its responses as per the threat perspectives which are emanating from time to time, and there is no
laxity on part of the security forces. They are committed, they are trying, and the adversary also keeps trying different ways of breaching the security grid. So it is highly dynamic, and it's good enough to say, and is a matter of satisfaction, that the security forces are customizing their responses as per the need of the hour. सर मैं शाहनवाज हूँ न्यूज नेशन चैनल से, हिंदी में जवाब चाहता हूँ बिल्कुल आपसे। सर, हिंदी में बोलेंगे। सर जिस तरीके से क्योंकि कल पूरा ऑपरेशन हम लोगों ने खुद देखा, जी। लेकिन रात को जिस तरीके से आईडी मिली एक, क्या आपको लग रहा है कि फिर एक बार पुलवामा जैसा अटैक और सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पे थी और नेशनल हाईवे पे उसी तरीके से आईडी रखना और वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाना, क्या मानते हैं आप? इससे पुलवामा जैसा अटैक होने वाला था, आपको लगता है? देखिए, इसमें अभी अन्वेषण चल रहा है और अन्वेषण के सतत प्रयास चल रहे हैं। वो अन्वेषण में क्या क्या और सूत्र मिलेंगे और उससे और क्या क्या हमको और जानकारी मिलेगी, उसकी तह तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें सामने आने की उम्मीद है। जब पूरी तह तक पहुंच जाएंगे तभी इसमें बताया जा सकेगा। लेकिन प्रथम दृष्टा जो परिलक्षित होता है उससे यही आभास होता है कि जो इनकी मारक क्षमता थी वो एक बहुत बड़ा या कई बड़े हादसे कर सकने के लायक थी, उसको एक तरीके से प्रिवेंट कर दिया गया है, उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही हैं पाकिस्तान से अभी भी, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा सके। देखिएगा, जब हम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता, इसलिए हर प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए। ये सिद्धांततया हम मान करके चलते हैं। लेकिन जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसमें काफी एजेंसीज काम कर रही हैं और उस पर इस मौके पर और भी चीज कोई गहराई से बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि परिचालनिक दृष्टि से सुसंगत नहीं होगा। इतना कहना मेरे लिए पर्याप्त है कि सारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से अपने कार्य को समझते हैं और कार्य करने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान साजिश रच रहा है कहीं न कहीं। इस संबंध में जो कुछ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और या अन्वेषण इकाइयां कर सकती हैं वो कार्रवाइयां की जा रही हैं। इतना मैं कहना पर्याप्त समझता हूं। सर, कल जो गाड़ियां हैं उनको जिस तरह M4 कार्बाइन भी मिली है, मैंने बताया कि इसमें अन्वेषण जारी है और उसमें हर दृष्टिकोण से अन्वेषण किया जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे उस पर जो सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। लेकिन इसमें इस अवस्था पर अभी किसी भी चीज पे इस टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि मामला अन्वेषणाधीन है और उसमें कई ऐसे सबूत मिलने के चांसेस हैं जिससे कि हम अपने सिक्योरिटी ग्रिड को और अधिक पुख्ता कर सकते हैं। सर, ये जो आप इंगित कर रहे हैं, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक समन्वित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं तो ये चीज भी हम लोग के संज्ञान में रहती है जब हम अपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम अपनी प्लानिंग करते हैं, जब हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं या जो हम अपनी क्षमता का विकास करते हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। सर, कल पुलिस का ये इतना कह सकता हूँ, मैं किसी भी टिप्पणी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब आपको केवल इतना कह सकता हूँ कि सारी सुरक्षा एजेंसियां एकीकृत रूप से अपना कार्य कर रही है, पूर्ण दक्षता से अपना कार्य कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो सुरक्षा का परिदृश्य है वो बहुत ही परिवर्तनशील है, डायनेमिक है। हम हर तरह की जानकारी करके जो भी बेहतरीन श्रेष्ठतम उपाय उसमें हो सकता है उसको प्रोएक्टिव रूप से अपनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम कोई घटना का इंतजार करते हैं, ऐसा भी नहीं। सारी सुरक्षा एजेंसियां प्रोएक्टिव रूप से आगे उसको ढूंढ करके न्यूट्रलाइज करने का भी प्रयास कर रही है। और इसी के चलते आप भी देखेंगे, मैं सीआरपीएफ की जहां तक प्रश्न है, पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे सर जो लखनपुर, देखिए ये राष्ट्रीय नीति है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म ये राष्ट्रीय नीति है और ये सरकार ने भी स्पष्ट किया है। तो सारी एजेंसियां इस दिशा में कार्य कर रही हैं और ये हमारा पक्का इरादा और हमारा स्पष्ट लक्ष्य भी है। सर कश्मीर घाटी की परिवर्तनशील स्थिति है, लेकिन हमारे पास जो एजेंसीज काम करती हैं आंकड़े हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ पर खोलना नहीं चाहूंगा। सर आप किसी एक भवन या एक व्यक्ति की बात ना करें, पूरी आम नागरिकों की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुगमता, वो भी हमारे लक्ष्य में है। जहां तक आपने उपकरणों के माध्यम से क्षमता विकास का प्रश्न उठाया है, इस संबंध में कार्रवाई जारी है और इसमें गुणवत्ता सुधार आपको बहुत शीघ्र दिखेगा। जहां तक आप जो परिचालनिक दृष्टि से आपने पूछा है कि किसने क्या किया,
तो मैं अपने सहयोगी यहाँ के एडी साहब हैं जुल्फिकार हसन साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको डिटेल में बताना चाहूँ। सीआरपी का स्क्वाड था और जिसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के 2 सिपाही थे। दोनों ने मिलके जब फायरिंग आई है, सीआरपी की पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने उनको रिटेलिएट किया फायरिंग को, और वहां पे ही एक आतंकवादी को मार दिया। उसके बाद और जो बाकी थे वो दौड़ के गए नीचे, घाट वहाँ अंधेरा हो गया था, उसका फायदा उठा के जो नीचे में नाला है उसकी तरफ चले गए। वहां पे सीआरपी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ में थी, दोनों ने मिलकर किया। उस वक्त वहां पे सीआरपी और जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर अफसरान थे, उनकी लीडरशिप में वो ऑपरेशन हुआ जिसमें बाकी मिलिटेंट्स मारे गए। और जैसे सर ने बताया कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात थी कि कुछ लोगों को जिंदा भी पकड़ा गया। ये भी एक जॉइंट एफर्ट था सीआरपी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, जिसमें एहतियात रखा गया कि जो आदमी जिंदा मिल रहा है उसको जिंदा लेना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में बाद में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसमें द लीड रोल वाज प्लेड बाय द सीआरपीएफ टोटली यस्टरडे, बट विद आवर ब्रदर फोर्स दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर लेकिन पुलिस। इनिशियल रिस्पांस जो सीआरपी को चेक किया गया और आतंकवादियों ने अंदर से फायर खोला, तो सीआरपी पार्टी वहां पे आर्म्ड पार्टी थी, सिर्फ सीआरपीएफ पार्टी आर्म्ड थी। तो इनिशियल रिस्पांस सिर्फ सीआरपीएफ की तरफ से हुआ, और उस रिस्पांस से ही वो आतंकवादी, पहली चीज कि वो मारे गए, और दूसरी चीज जिस तरह के उनके पास वेपन्स थे, अगर उस वक्त सीआरपी का वो रिस्पांस नहीं होता तो वो कल सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा उसी स्पॉट पे नुकसान कर देते। तो इसलिए सीआरपीएफ का रोल, जो वहां पे लड़के थे सीआरपी के जवान जो हमारे थे, उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और जिस तरह से ये ट्रेन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उन पर फायरिंग की थी और उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देना और भागने पे मजबूर करना और बाद में परस्यू करके घाटी में जाके मारना, ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आपने खुद वहाँ का टेरेन देखा है। तो ये मैं पूरा मार्क्स वो सीआरपीएफ की जो पार्टी थी वहाँ पे उनको दूंगा, और ऑब्वियसली साथ में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस थी, थैंक यू।